myself Nilesh Patil. I am from Pankaj Global Public School, Chopra. So today we are going to discussing the chapter number 4 for the 10th class, carbon and its compound. So today discussing topic is the addition reaction. You know that what is meant by the addition reaction? The simplest definition of the addition reaction in which the unsaturated hydrocarbon chain is converted into the saturated hydrocarbon chain by the addition of the hydrogen in presence of the acid catalyst. Okay. So first of all आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन क्या है? What is meant by saturated hydrocarbon chain and what is meant by unsaturated hydrocarbon chain? Okay. So saturated hydrocarbon chain is the saturated and unsaturated. Okay. तो ये समझ लो unsaturated होता क्या है, saturated होता क्या है. Okay. So saturated means the saturated hydrocarbon chain in which the carbon is connected only bonded onto the single bond. Okay. The carbon in which there is a single bond, जहाँ carbon single bond से bonded होगा, वो होगा आपका saturated compound, and unsaturated compound means the unsaturated compound in which the carbon in which there is a double bond as well as triple bond. Okay. So unsaturated hydrocarbon chain के अंदर क्या होता है? Unsaturated hydrocarbon chain in which the carbon containing the single bond, and unsaturated hydrocarbon containing the double bond as well as triple bond is called as the unsaturated and is part of the saturated. Okay. यहाँ clear हुआ आपको saturated क्या होता है, unsaturated क्या होता है? Okay. So जैसे कि मैंने बताया, saturated hydrocarbon chain addition reaction in which the unsaturated hydrocarbon chain is converted into the saturated hydrocarbon chain. Okay. So I am write down the chemical formula. First of all, I am going to discuss the saturated and unsaturated. So this is structure of the CH2 double bond CH2. Okay. H2 This is example of the addition reaction. Okay, जैसे मैंने बताया कि unsaturated hydrocarbon chain convert होकर क्या फॉर्म होगा? Saturated hydrocarbon chain में by the addition of the H2 means hydrogen in presence of the nickel catalyst as well as palladium. There are two catalysts are there. First the nickel and second one is the palladium. Okay. So this unsaturated hydrocarbon chain converted into the saturated hydrocarbon chain means product क्या मिलेगा आपका? CH3 single bond CH3 unsaturated से आपको मिला saturated compound. Okay. So that is the addition reaction. Unsaturated hydrocarbon chain converted into the saturated hydrocarbon chain by the addition of the hydrogen in presence of the nickel as well as palladium catalyst. Okay. I am write down the mechanism. Mechanism क्यों write down करो? एग्जाम के अंदर आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बट मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म के अंदर आपको पता चलता है एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रही है हाइड्रोजन के बाद, और इज द एथीन मॉलिक्यूल. दिस द एथीन मॉलिक्यूल. एथीन एन इज द सफिक्स ऑन दिस हाइड्रोकार्बन चेन. जैसे क्या ये डिस्कस करेंगे, ए कब लगता है, ये कब लगता है. ओके. हाइड्रोकार्बन चेन जब सिखाऊंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा तब. ओके. सो द CH2 double bond CH2 is the ethene molecule plus the hydrogen molecule H2, dihydrogen molecule. The unsaturated hydrocarbon chain converted to saturated hydrocarbon and write down the mechanism. Okay. So मैं write down the mechanism write करूँगा. Just a minute. That's the structure of the ethene molecule plus H2 in presence of the nickel. The unsaturated hydrocarbon chain converted into saturated hydrocarbon chain. Okay. Mechanism of this reaction. Mechanism in which the first of all CH2 जो यहाँ पे ऐसे राइट डाउन किया हुआ है, इसको ऐसे राइट डाउन करूँगा. CH2 double bond CH. सो मैं आप थोड़ा और टाइम ऑफ कर लूंगा. तो आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है. कार्बन वैलेंसी 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन आएगा. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. वैलेंसी क्या इंडिकेट करती है कि उसकी
कैपेसिटी, बॉन्डिंग कैपेसिटी कि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड आर फॉर्मेड कार्बन। ओके, जो 4 बॉन्ड होंगे कार्बन जो फॉर्म करेगा वो होंगे उनके कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। ओके, उसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी वो 4। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे इस कार्बन एटम में कितनी 4, 1 2 3 4, दिस वन से 1 2 3 4। ओके, सो दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल है। वैलेंसी आपको पता है, वैलेंसी क्या इंडिकेट करती है कि उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी वैलेंसी दी जाती है। ओके, सो वैलेंसी कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ओके, सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 मॉलिक्यूल, दिस वन है H2 मॉलिक्यूल। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ निकल कैटालिस्ट दिस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। सो सिंपल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या करना है, दिस हाइड्रोजन एटम is attacked on this carbon atom loss of this bond। ओके, और यहां से लॉस हो जाएगा वैसे, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर वैलेंसी 1 है तो उसे यहां पहले इन्वेस्ट करते हैं उसकी वैलेंसी, मतलब कि इसकी वैलेंसी 1। ओके, सो दोनों की वैलेंसी इंगेज हो गई। तो जब ये 1 वैलेंसी मतलब कि ये हाइड्रोजन एटम अगर इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, मतलब कि क्या करेगा, अगर वैलेंसी एक ही है तो अगर इधर न्यू बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड उसको लॉस करना ही होगा। व्हाई, बिकॉज़ द हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1। ओके, एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर यहां बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस कार्बन एटम के साथ, द लॉस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। व्हाई, बिकॉज़ दिस 1 वैलेंसी एंगेज टू बी अनदर एटम। ओके, सो समझ में आ रहा है? अगर कुछ रिवर्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे भेज देना, इससे कुछ दिक्कत नहीं। ओके, सो दिस हाइड्रोजन एटम अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, the loss of bond, this carbon atom loss of bond, this carbon atom ये डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आपका C, ये वाला H जो है, ये वाला H में यहां राइट एंगल होगा, दिस H, ये H में इससे राइट एंगल होगा, सेकंड वाला H, दिस वन सेकंड एंड थर्ड दिस जो यहां पे अभी न्यूली फ्रेशली आया हुआ है वो वाला भी आएगा। ओके, सो फिर यहां 1 2, क्यों दो, क्योंकि यहां 2 ही। अब मैं काउंट करूंगा वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन एटम 1 2 3 4, दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल हो गए, 4 वैलेंसी इज कंप्लीट ऑफ दिस कार्बन एटम। अनदर कार्बन एटम इज द 1 2 एंड 3, एक बाकी है तो यहां पे आ जाएगा प्लस कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, मतलब कि रेडिकल फॉर्म होगा। ओके, मैं यहां रेडिकल फॉर्म करता हूं, दिस वन द रेडिकल फॉर्म हो किसके ऊपर, स्टेप फर्स्ट के अंदर रेडिकल फॉर्म हुआ दिस कार्बन एटम के ऊपर। मैं स्टेप सेकंड में आपको वो भी समझा देता हूं, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। ओके, सो H this H and this one the radical। ओके, एक रेडिकल फॉर्म हो, और यहां से जो हाइड्रोजन लॉस हुआ था उसके ऊपर भी रेडिकल फॉर्म हुआ, क्योंकि रेडिकल का फॉर्म होता है जब उसकी वैलेंसी अनस्टेबल होती है, उसकी वैलेंसी अनस्टेबल होती है, मतलब कि अब इस कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट नहीं मींस 1 इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वह रेडिकल फॉर्म हुआ। रेडिकल के इंडिकेट करता है कि इसको जरूरत है लेने की या देने की। ओके, सो इस कार्बन एटम का रेडिकल फॉर्म हो, इसको भी एक ही जरूरत है, इसके अंदर भी रेडिकल फॉर्म हो, तो क्या होगा, ये दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो न्यू बॉन्ड कहां फॉर्म होगा, यहां पे फॉर्म होगा, जैसे कि H सेकेंड एंड न्यूली बॉन्डेड हुआ हाइड्रोजन, मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन कन्वर्ट हुई आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर। अब ये क्या हुआ, आपका मॉलिक्यूल क्या हुआ है, 1 2 3 एंड दिस C, मतलब कि CH3 एंड सेकंड वन इज द 1 2 3 CH3। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे आप, सेम स्ट्रक्चर जो आपको कंपाउंड मिला है वही आपका स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर होगा। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से was form of the product saturated hydrocarbon chains। ओके, तो एडिशन रिएक्शन के अंदर ज्यादा कुछ आपको दिमाग मारी करने की जरूरत नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन आपको फॉर्म करना है एडिशन रिएक्शन के अंदर। ओके, सो बेसिक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। ओके, so this reaction is commonly used as a hydrogenation reaction। इस reaction is commonly used as a
हाइड्रोजनेशन, व्हाई टू हाइड्रोजनेशन, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इन विच द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, बोला जाता है। ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, सो वेजिटेबल्स ऑयल्स यूजिंग द acid catalyst, okay, using the linear catalyst. Okay, so vegetable oils generally have the long unsaturated hydrocarbon chain, while the animal fats have the saturated hydrocarbon chain. For this example, okay, is according आपको unsaturated hydro मतलब जो oils oil होगा उसको आप saturated oil में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और जो saturated oils होते हैं, जो भी saturated oils होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फैटी एसिड प्रेजेंट होता है अनसैचुरेटेड ऑयल्स के अंदर। ओके, सो ये जो हार्मफुल होते हैं फैटी एसिड अपने बॉडी के लिए, एनिमल्स बॉडी के लिए फैटी एसिड इज हार्मफुल। ओके, सो अगर एडिशन रिएक्शन के अंदर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आए, कोई टॉपिक ऐसा जो आपके दिमाग के ऊपर से गया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्यूरियोसिटी होगी, माइनर क्यूरियोसिटी भी है तो प्लीज सेंड मी, मैं आपकी क्यूरियोसिटी रिजॉल्व करके आपको वापस कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन का आंसर सेंड कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे रुकते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में